Morning, dear student. How are you all? I hope you have completed whatever I have given to you. Right? I have given to you what is corporate finance, explain its importance. My first question was what is corporate finance, and explain its importance. Second question was capital requirement, that is fixed capital. Second one is working capital. In that I have given to you factors of fixed capital as well as factors of working capital. Okay, so today I will start point number 1.4, that is capital structure. Okay, what do you mean by capital structure? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? A company can raise its capital from different sources, that is own capital or borrowed capital, right? Own capital or borrowed capital, or both. The owned capital consists of equity share capital, preference shares capital, reserves and surplus. On the other hand, borrowed sources are debentures, loan, etc. This is a combination of different sources are used in capital structure. It is nothing but security mix. Capital structure is consist of two type. First one is own capital, second one is borrowed capital, right? हमारे पास own capital और दूसरा होता है borrowed capital. Own capital means what? Equity share capital you can say. Second one is preference share capital, right? So these are the own capital. Whereas borrowed capital, it consists of debenture, loans, right? So these all are come under borrowed capital. Barabar? Whereas in own capital, equity capital. What do you mean by equity capital? The equity shareholder who purchased the share of the company is known as equity shareholder. They are the owner of the company. Whereas preference shares capital are those capital where the dividend are fixed in nature. The preference shareholder get fixed rate of dividend, whereas equity shareholder get fluctuate rate of dividend. What do you mean by fluctuate? It means change, depend upon the market condition. Okay, whereas borrowed capital, one is debenture, second one is loan. हमको इक्विटी कैपिटल में हमको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, और डिवेंचर में हमको क्या मिलता है? इंटरेस्ट. हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं कंपनी को और कंपनी हमको उसका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है. उसी तरह लोन भी डिवेंचर की तरह है, राइट? सो डेफिनेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, पेज नंबर 8. Capital structure means mix up of various sources of fund in desired proportion to decide. Capital structure means to decide upon the ratio of different type of capital. Different type of capital means what? वही जो मैंने आपको बताया, own capital then borrowed capital. Own capital के अंदर क्या आता है? Equity shares एंड प्रेफरेंस शेयर्स. बोरोड कैपिटल के अंदर क्या आता है? डिवेंचर्स एंड लोन,
right? So come with the definition. According to R.H. Wessel, what he has written, the long-term sources of fund employed in a business enterprises. ये किसके हिसाब से? ये R.H. Wessel के हिसाब से. What they are saying, it is a long-term sources of fund employed in a business enterprise, right? सेकेंड डेफिनेशन जॉन हैम्पटन के हिसाब से, उसने क्या बोला हुआ है? अ फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रिलेशन बिटवीन द डेप्ट एंड इक्विटी. डेप्ट मीन्स व्हाट? डिवेंचर. इक्विटी मीन्स व्हाट? ये तुम्हारा ओन कैपिटल है. और डेप्ट क्या है हमारा? बोरोड कैपिटल. सिक्योरिटीज दैट मेक्स अप द फर्म फाइनेंसिंग ऑफ इट्स एसेट, जिसके ज़रिए हमको डिविडेंड मिलता है. बराबर, अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको डिविडेंड मिलता है ओन कैपिटल में, और अगर हम बोरोड कैपिटल अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हमको इंटरेस्ट मिलता है, राइट? Thus, the capital structure is composed of, again same thing, own fund and borrowed fund. ओन फंड इंक्लूड, अब ओन फंड के अंदर क्या क्या आता है जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया, जैसे शेयर कैपिटल. और शेयर कैपिटल में मैंने आपको बताया दो तरह का होता है, एक इक्विटी शेयर्स होता है और एक प्रेफरेंस शेयर्स होता है. फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस. व्हाट डू यू मीन बाय फ्री रिजर्व एंड सरप्लस? क्या होता है इसका मतलब? फ्री रिजर्व का मतलब होता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो वो क्या करता है कि पार्ट अमाउंट साइड में रख लेता है, उसको हम बोलते हैं रिजर्व. कभी भी बिजनेस में अगर डिक्लाइन हो रहा है, कोई कमी आ रही है, अगर लॉस हो रहा है, बराबर, क्योंकि ओनर को तो हमको पैसा देना ज़रूरी है, शेयर होल्डर्स को हमको पैसा देना ज़रूरी है, तो वो जो साइड में पैसा रखा जाता है, बराबर, वो बिजनेस में यूज़ हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व. एंड सरप्लस मीन्स व्हाट? प्रॉफिट. सरप्लस मीन्स प्रॉफिट. whereas borrowed fund represent debentures. अभी मैंने बताया था what it represent? A debentures. Bank loan, that is long term loan provided by the financial institution. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो लोन प्रोवाइड करता है. और हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं. IDBI है, HDFC है, ICICI है, राइट? ऐसे हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो फंड को देते हैं. कंपनी जो फंड बैंक से लेती है, जो पैसे लेती है, दैट इज बोरोड फंड, राइट? Additional information. Principle of capital structure. Two basic principles are observed while taking decision. Which one? About capital structure. पहला basic thing क्या बोला हुआ है? The ratio of debt to equity should always be geared to the degree of stability of अर्निंग, राइट? रेशियो ऑफ डेब्ट टू इक्विटी का मतलब क्या होता है? हमारा जो डिबेंचर है, बराबर, अगर हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इक्विटी में, वो कन्वर्ट हो सकता है. इट कैन बी कन्वर्टेड, राइट? डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. दैट इज व्हाई दे हैव गिवन द रेशियो ऑफ डेब्ट टू इक्विटी शुड ऑलवेज बी गियर्ड टू डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग. क्या रीज़न है ऐसा? इसका रीज़न ऐसा है कि ताकि कंपनी को लॉस ना हो सके, राइट? सेकेंड, द कैपिटल स्ट्रक्चर मस्ट बी बैलेंस विथ एजुकेट इक्विटी क्वेश्चन टू एब्जॉर्ब द शॉक ऑफ बिजनेस साइकिल
and to afford flexibility. And to afford flexibility. What do you mean by flexibility? Depend upon the market condition, it can be change. डिविडेंड रेट हमारा चेंज हो सकता है हमारे मार्केट कंडीशन के हिसाब से, राइट? अगर मार्केट अप्स है तो डेफिनेटली हमारा डिविडेंड रेट बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी में आएगी, और अगर मार्केट रेट कम है तो हमारा डिविडेंड रेट कम हो जाएगा. ओके, नाउ कम टू 1.4.2, दैट इज कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. जो मैंने आपको मीनिंग डेफिनेशन में मैंने आपको जो समझाया है बस वही डिस्कस किया हुआ है. दैट इज देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. दे आर एज फॉलो. फर्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल. ये हमारा ओन्ड कैपिटल है. क्या है हमारा? ओन कैपिटल, जहाँ पे शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं इसमें और इन रिटर्न उनको डिविडेंड मिलता है. और वो डिविडेंड का रेट क्या रहता है? वेरी गुड, फ्लक्चुएट रहता है. डिविडेंड का रेट फ्लक्चुएट रहता है. सो इट इज़ द बेसिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस. Equity shares are the shares which get dividend and repayment of capital after it is paid to preference shares. They own the capital, they own the company, they bear ultimate risk associated with ownership, they carry dividend at fluctuating rate depending upon the प्रॉफिट. अभी मैंने आपको बताया कि इसका डिविडेंड रेट क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है. बट इक्विटी शेयर्स जो होता है वो रिस्की होता है. कैसे रिस्की होता है? से एग्जाम्पल, अगर आप शेयर्स परचेज कर रहे हो, राइट, 10 रुपये के भाव से अगर आप शेयर परचेज कर रहे हो, 10 रुपये के हिसाब से अगर 1000 शेयर्स आपने खरीदा तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10,000 रुपये, राइट? कितनी हो गई? 10,000 का शेयर्स आपने खरीद लिया, बराबर. अभी 10 के हिसाब से 1000 शेयर्स खरीदा है. कल को मार्केट अगर गिर गया, 10 से इसकी वैल्यू अगर 8 हो गई तो डेफिनेटली व्हाट इट हैपन, 1000 इज योर शेयर्स इनटू rate of shares is 8. It means 8000. देखिए आपको 2000 का इसमें लॉस हो रहा है. कहाँ 10,000 था और रेट कम हो गया तो 10,000 से इसका 8,000 रेट हो गया. दैट इज वाई इट इज अ रिस्की. देन ऑल्सो शेयर होल्डर परचेज द इक्विटी शेयर्स. वाई? बिकॉज दे नो अप्स और डाउन होते रहता है, राइट? इफ मार्केट नॉट डिमांडेड मोर देन इट विल बी लॉस फॉर द शेयर होल्डर, एंड इफ इट इज डिमांडेड मोर, शेयर वैल्यू इज मोर, डेफिनेटली द रेट ऑफ डिविडेंड विल बी मोर, राइट? इसीलिए वो क्या करते हैं शेयर होल्डर्स? परचेज करने के बाद अपने पास सेव रखते हैं. जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो सेल कर देते हैं, राइट? सेकेंड वन इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर्स कैरी प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स for return of capital. When the company is liquidated, these shares carry dividend at fixed rate. What it means? Preference shares holder have preferential right. उनके पास preferential right होता है कि वो shares को खरीदते हैं. But
दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट बोनस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस नहीं मिलता है, वेयर एज इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस मिलता है। और इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस कब मिलता है? जब 1 साल से ज़्यादा हो जाता है। व्हेन दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर again invest his money in equity shares, then they can dividend. Okay, dividend means what? In return they will get dividend, and also whatever they purchase the shares, say example 1000 shares इन लोग ने परचेज किया हुआ है, राइट? तो 1000 इनको बोनस भी मिलता है अगर वो पुराने शेयर होल्डर्स हैं। अगर पुराने नहीं हैं, यानी 1 साल के अंदर हैं, तो उनको बोनस नहीं मिलता है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दे गेट प्रेफरेंशियल राइट कि कौन सी कंपनी का खरीदे, कौन सा प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे, बराबर। बट दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट बोनस, दे गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, whereas इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्लक्चुएट रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, राइट? तो प्लीज आप भूलना नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर को फ्लक्चुएट रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। क्यों फ्लक्चुएट रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है? इट डिपेंड अपॉन द मार्केट कंडीशन, इट डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट, whereas प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। दोनों में और क्या डिफरेंस है? इक्विटी शेयर होल्डर की जो प्राइस होती है 1 से लेके 10 तक रहता है, 1 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, डिपेंड अपॉन द कंपनी नेचर। अगर नई नई कंपनी है तो अपना शेयर वो सस्ते में बेचती है, बट नॉट मोर देन 10 रुपीज। इसका प्राइस 10 रुपये से ऊपर नहीं होता है। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या होता है? इसका जो रेट होता है 100 रुपीज होता है। दैट इज वाई preference shareholder are very cautious to invest their money in preference shares. अपना पैसा लगाते हैं, सोच समझ के लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है। देखिए यहाँ पे सिस्टम क्या है, 1000 शेयर्स आपने 10 रुपए के हिसाब से खरीदा, यानी 10,000 का शेयर्स खरीदा। और यहाँ पे अगर आप 100 शेयर्स खरीद रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहा हूँ, 100 शेयर्स खरीद रहे हो जिसका कॉस्ट है 100 रुपीज पर शेयर, कितना हो गया? सेम वैल्यू 10,000। खाली जो शेयर्स की जो वैल्यू थी, ऊपर इक्विटी शेयर्स 1000 था, वेयर एज प्रेफरेंस शेयर्स ओनली 100। ये डिफरेंस रहता है दोनों में, राइट? तो ये आप कभी नहीं भूलना। ओके, देन रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है? हम किसी में पैसा लगाते हैं, हमको अर्न करके देता है, मतलब पैसा जिसमें लगाए तो हमको क्या मिल रहा है उसके बदले, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग, और बोलते हैं हम लोग प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि हम कहीं अगर से एग्जांपल इन्वेस्ट कर रहे पैसे, बराबर, तो वो जो इन्वेस्ट किए हैं वो क्या दे रही है साथ में, इन रिटर्न क्या दे रही है, बराबर? इन रिटर्न दे विल गेट प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग, थर्ड पॉइंट, इट इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। इट इज नथिंग बट प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। मैंने बताया ये प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है इसको। हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमको रिटर्न में क्या मिल रहा है, राइट? देन पॉइंट नंबर 4 इज बोरोड कैपिटल। मैंने आपको बताया एक होता है ओन कैपिटल, दूसरा होता है हमारा बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल इट कंप्राइजेस द फॉलोइंग। पहला, डिवेंचर। ओके, लेट्स स्टडी डिवेंचर। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन रेज बाय द कंपनी। कंपनी हैज टू पे interest at an agreed rate. At an agreed rate का मतलब क्या होता है कि कंपनी जब डिवेंचर
डिवेंचर होल्डर को देता है, बराबर, या डिवेंचर होल्डर कंपनी से जब डिवेंचर खरीदता है, बराबर, तो उसकी जो वैल्यू होती एग्रीड होती है कि हम इतने में आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। से एग्जांपल अगर आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10,000 का अगर हम आपको 5% इंटरेस्ट देंगे या 10% इंटरेस्ट देंगे, वो एग्रीड वैल्यू होता है कि इतने में बात पक्की हो गई, बराबर। वो एग्रीड वैल्यू में उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर 10% है तो 10% मिलेगा, अगर 5% है तो 5% मिलेगा। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंपनी एज वेल एज नेचर ऑफ द डिवेंचर होल्डर, राइट। देन पहला तो था बोरोड कैपिटल में डिवेंचर, दूसरा हमारा है टर्म लोन। टर्म लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक एंड अदर financial institution. They carry fixed rate of interest. To understand the above concept, we shall consider the following balance sheet and calculate the value, right? Then come to page number 9. They have given, देखिए हमारा दिया हुआ है, दिखा क्या लिखा हुआ है, देखिए बैलेंस शीट ऑफ ABC कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। अच्छा, ये हम 31 मार्च ही क्यों लिखते हैं? मैंने आपको 11th में बताया था, ये हमारा ईयर एंडिंग है। हमारा ओपनिंग डे क्या होता है? 1 अप्रैल। हमारा क्लोजिंग डेट क्या होता है? 31 मार्च। दैट इज वाई दे हैव गिवन, दैट इज वाई इन बैलेंस शीट ऑल्सो व्हेन द फाइनेंशियल, जब ऑडिटर आता है ऑडिट करके जाता है, बराबर, तो ऑडिट कब का करेगा? स्टार्टिंग टिल एंडिंग डेट 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का वो ऑडिट करता है, और वही ऑडिट के बेस पे हमारा बैलेंस शीट बनता है जो आपके सामने है, दिखा? यही है आपका बैलेंस शीट। ओके, तो सबसे पहले हम लायबिलिटीज में आएंगे। देखिए, शेयर कैपिटल, ये हमारा ओन कैपिटल है। शेयर कैपिटल क्या है? हमारा ओन कैपिटल है, राइट। देखिए लिखा है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10,000 इक्विटी शेयर्स था जिसकी वैल्यू 10 रुपये थे, बराबर। तो कितनी वैल्यू हो गई ये? 1 लाख, राइट। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स थी जिसकी वैल्यू 100 था, उसकी वैल्यू हो गई 5 लाख। देखिए, देखा ना आपने फर्क? आपका 10,000 इक्विटी शेयर्स था, 10 रुपये के हिसाब से आपने 1 लाख का परचेज किया, बराबर। इक्विटी शेयर्स कंपनी अपना शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने 5,000 शेयर्स खरीदा 100 रुपये के हिसाब से, इसका रेट बढ़ गया 5 लाख। यानी यहीं पे आप डिफरेंस देखिए क्या है। यहाँ पे 10,000 का इक्विटी शेयर आपको 1 लाख में मिल रहा है, यहाँ पे 5,000 का प्रेफरेंस शेयर आपको 5 लाख में मिल रहा है, बराबर। 4 लाख का डिफरेंस है कि नहीं, राइट। देन रिजर्व एंड सरप्लस, अभी मैंने आपको बताया था रिजर्व एंड सरप्लस 50,000, ये हमारा रिजर्व है और सरप्लस है। जब ज़रूरत होएगा वो पैसे को हम यूज़ करते हैं, यानी कंपनी जब पैसे की ज़रूरत होती है तब वो यूज़ करता है। ओके, देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है? देखिए 1,010% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड। ये कंपनी 1,010% डिवेंचर के हिसाब से 100 रुपये के हिसाब से डिवेंचर होल्डर को बेचती है, बराबर। 1 लाख रुपया, यानी डिवेंचर होल्डर को 1 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसका 10% उसको क्या मिलता है? रेट ऑफ फिक्स इंटरेस्ट। मैंने क्या बोला? एग्रीड वैल्यू। 10% भी हो सकता है, 11% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है। इट इज़ एन एग्रीड वैल्यू। ये कंपनी का और जो पैसे इन्वेस्ट करता है वो दोनों में एग्रीड वैल्यू जो होगी, जो आपस में बात किए रहेंगे, उसके हिसाब से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, राइट। देन क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स
पेबल 20,000. हमारा बिल्स टोटल अमाउंट कितना हो गया? 8 लाख, राइट. एंड बिल्स पेबल इज योर लाइबिलिटीज. मैंने फाइनल अकाउंट में भी कराया था आपको. सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, राइट, ये सब हमारा लाइबिलिटीज है. टोटल अमाउंट कितना बताया? 8 लैक्स. देन कम टू एसेट साइड. हमने क्या क्या खरीदा, हमारे पास 3 तरह के एसेट्स होते हैं. आपको 11th में मैंने बताया था 3 तरह के एसेट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है फिक्स एसेट, राइट. दूसरा होता है हमारा, क्या होता है दूसरा? इंटेंजिबल एसेट. वेरी गुड, इंटेंजिबल एसेट. तीसरा हमारा होता है करंट एसेट. करंट एसेट. फिक्स एसेट्स में और करंट एसेट में क्या फर्क होता है? फिक्स एसेट फॉर लॉन्ग पीरियड और हमारा करंट एसेट होता है फॉर शॉर्ट पीरियड. ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. फिक्स कैपिटल और हमारा वर्किंग कैपिटल, याद आया? बस वही है. अब फिक्स एसेट में बिल्डिंग 4 लैक्स, प्लांट एंड मशीनरी 2 लैक्स, करंट एसेट अभी मैंने बताया. अब ये करंट एसेट के अंदर ये सब आते हैं. डेटर्स 1 लाख, इन्वेंट्रीज ये हमारा स्टॉक है. इन्वेंट्रीज का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक 50,000, कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 40,000, राइट. अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है, दिखा रहा है. इक्विटी शेयर्स 1 लाख का था, प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख का था, रिजर्व 50,000 का था, डिवेंचर हमारा 1 लाख का था. टोटल हमारा कितना हो गया? 7,50,000. ये हमारा था कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट. अब आपके दिमाग में रहेगा कि ऊपर बैलेंस शीट में तो 8 लाख दिख रहा है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर जब हम टोटल कर रहे तो 7,50,000 दिख रहा है. दिखेगा 7,50,000 दिखेगा. क्यों? बिकॉज वो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक तो हमारा ही पैसा है, यानी कंपनी का ही पैसा है, बराबर. इनको तो कैपिटल स्ट्रक्चर दिखाना है, तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कितना हो गया? 7,50,000, राइट. एक्टिविटी व्हाट दे हैव गिवन, visit website of any public limited company and find out detail of its capital structure. आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्टिविटीज़ के लिए आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी के वेबसाइट में जाना पड़ेगा, राइट. डिटेल निकालना पड़ेगा, ओके, डिटेल निकालना पड़ेगा, राइट. देन वो हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया. कौन सा? हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया. कैपिटल स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन, कैपिटल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर का कंपोनेंट, राइट. एंड दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है. अगर शॉर्ट नोट में आया तो 5 मार्क्स का आएगा, और अगर आपको लेंदी क्वेश्चन में आया तो 10 मार्क्स का आएगा, राइट. इसके लिए आपको ये सब लिखना पड़ेगा. उसके बाद आपका ये बैलेंस शीट है, ठीक है. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज 1.5 डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्टिंक्शंस, राइट. व्हाट दे हैव गिवन? दे हैव गिवन 6 पॉइंट. फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये हमने पहले पढ़ चुका हुआ है, लेकिन फिर से हम क्या कर रहे हैं? रिवाइज करेंगे, और दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको पता चलेगा, राइट. देन स्टार्ट. मीनिंग in fixed capital, what they have given? Fixed capital refers to any kind of physical asset. Any kind of physical asset. What is physical asset? हमारा fixed asset, plant and machinery, land and building, furniture, motor car, vehicles, computer, books, ये सब हमारा fixed assets है, करेक्ट. देन वर्किंग कैपिटल में मीनिंग क्या लिखा हुआ है? देखिए, वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द सम ऑफ करंट एसेट. सम ऑफ करंट एसेट का मतलब क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, वो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है, राइट. देन नेचर, इट स्टेज
in the business almost permanently. जाहिर सी बात है, फिक्स एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये परमानेंट एसेट है. फिक्स एसेट is also known as permanent assets. Why? ये हमारे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रहता है, 20 साल, 10 साल, 15 साल. हाँ, वो बात अलग है कि हमको मेंटेनेंस कराना पड़ता है, मेंटेनेंस चार्जेस हम पे कर देते हैं, बट ये फिक्स रहता है, परमानेंट कैपिटल है. ओके, देन वर्किंग कैपिटल क्या है? इसको हम बोलते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल. सर्कुलेट होता है, इट कीप्स चेंजिंग, ये हमेशा चेंज होते रहता है. क्यों बोला गया है इसमें? चेंज इसके लिए बोला हुआ है कि शॉर्ट टर्म पीरियड के रहता है. अगर ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए है तो आप समझिए ये फिक्स एसेट है. शॉर्ट टर्म के लिए क्या है? ये हमारा वर्किंग कैपिटल है. राइट नाउ, पर्पस, हमारा मेन पर्पस क्या होता है? इट इज इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट सच एज, अभी मैंने इसके ऊपर वाला पॉइंट मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट वाला पॉइंट, इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मोटर कार, व्हीकल. राइट, ये सब हमारा फिक्स एसेट है. एक्सेट्रा दे हैव गिवन. वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म, अभी मैंने बताया था, शॉर्ट टर्म एसेट है, सच एज कैश अकाउंट है, रिसीवेबल अकाउंट है, इन्वेंट्री है, एक्सेट्रा. बराबर. देन सोर्सेज, अब ये फिक्स कैपिटल का क्या सोर्सेज है? फिक्स कैपिटल फंडिंग कैन कम फ्रॉम सेलिंग शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म लोन, एक्सेट्रा. ये हमारा सोर्स है. हमको पैसे, कंपनी को पैसे कहाँ से आते हैं? जब अपना शेयर्स, डिवेंचर वो कंपनी बेचती है. राइट. वर्किंग कैपिटल क्या है? कैन बी फंडेड विथ शॉर्ट टर्म लोन, डिपॉजिट, क्रेडिट, एक्सेट्रा. राइट. पॉइंट नंबर 5, ऑब्जेक्टिव्स. पॉइंट नंबर 5, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर. क्यों इन्वेस्ट करते हैं इसमें? प्रॉफिट कमाने के लिए. इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन फिक्स कैपिटल होपिंग टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट, ताकि उनको प्रॉफिट हो, इसके लिए वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं. राइट. इसमें क्या होता है? इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न्स. वो चाहती है कि पैसे अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको तुरंत पैसे रिटर्न मिले उसको. ये हमारा होता है वर्किंग कैपिटल. और वर्किंग कैपिटल दूसरा, इसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटिंग कैपिटल. राइट. पॉइंट नंबर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर. क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन फिक्स कैपिटल होपिंग टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट. इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये. राइट. देन पॉइंट नंबर 6, रिस्क. देखिए, दोनों में रिस्क होता है. सबसे ज़्यादा रिस्क इसमें होता है फिक्स कैपिटल में. इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल इम्प्लाइज मोर रिस्क. इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज लेस रिस्की. क्यों लेस रिस्की? क्योंकि इसमें पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं वो कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं. बराबर. जो भी इनको रिटर्न्स मिलता है, जो भी इनको प्रॉफिट मिलता है, वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहता है. एक में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, उनको रिटर्न मिला, देन जो रिटर्न मिला उसी को फिर री इन्वेस्ट किए. ये हमारा वर्किंग कैपिटल है. वर्किंग कैपिटल इज फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, वेयर एज फिक्स कैपिटल इज फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड. That is why fixed capital is very risky, whereas working capital is less risky. Now, what you have to do? You have to again read.
आपको रीड करना है। क्या क्या रीड करना है आपको मैंने बताया, कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिर उसका कंपोनेंट। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, रीड करके हो जाएगा, आपको असाइनमेंट बुक बनाना है, आपको असाइनमेंट में लिखना है। और ये आपका असाइनमेंट नंबर क्या है? ये आपका असाइनमेंट नंबर 1 है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। एक्चुअली 2 क्वेश्चन तो मैंने दे दिया, तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन इट, कंपोनेंट। एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या रहेगा? डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। राइट, इतना अगर आपका हो गया तो समझो आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सब एक बार फिर से रीड करना है। रीड करने के बाद आपको असाइनमेंट बनाना है, असाइनमेंट बुक, और असाइनमेंट बुक में आपको लिखना है। ठीक है, अब समरी दिया हुआ है। ओके, तो नो नीड फॉर समरी बिकॉज ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन टू यू, आई हैव डिस्क्राइब टू यू। यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन तो है ही है आपके पास, उसके अलावा आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो एंड री राइट द स्टेटमेंट। बराबर, ये 5 मार्क्स का आता है बोर्ड में, ध्यान में रखना, इसको छोड़ना नहीं। ठीक है, ये आपको करना ही है, और आप तो ईजिली कर लोगे बिकॉज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। बराबर, तो आपको क्या करना है, बस इसको कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 1 ए लिखना है। राइट, 10 क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 1 बी लिखना है, मैच दी पैर, ये पूरा करना है। बराबर, ये आप ढूंढो, मैंने आपको जो भी कराया है चैप्टर नंबर 1 से, बस ये उसी से रिलेटेड है, आप उसी में से ढूंढ लो। और मैं तो बोलता हूँ आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज आपको याद हो गया होगा। राइट, देन ये हमारा सी पार्ट है। गिव 1 word, you can say, write a word or a terms or phrase which can substitute each of the following statement। ये 10 लिखना है आपको। राइट, ट्रू और फॉल्स आप इजिली दे सकते हो, आप अच्छे बच्चे हो। राइट, इसमें भी 10 पॉइंट है। फिर आपका है फाइंड दी ऑड वन, ये आपको 11th में भी था, फाइंड दी ऑड वन, उसी तरह आपको 12th में भी। लास्ट ईयर तक ये फाइंड दी ऑड वन नहीं था, कंप्लीट दी सेंटेंस नहीं था, सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन नहीं था, बट ये आपके लिए है ताकि पेपर इजी हो, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सको। राइट, देन ई पार्ट क्या दिखा है, ये भी आपको लिखना है, फाइंड दी ऑड वन। देन एफ का कंप्लीट दी सेंटेंस करना है, एंड जी का लिखा हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी ब्रैकेट। राइट, यहाँ पे ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, फाइनेंसिंग डिसीजन है, आपको इधर लिखना है क्या है, डैश लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डैश सर्कुलेटिंग कैपिटल, आपको याद होना चाहिए सर्कुलेटिंग कैपिटल क्या है, वेरी गुड, वर्किंग कैपिटल, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड। राइट, to have right amount of capital, deploy fund is a systematic manner, fix capital, working capital, capital structure। देखिए इधर आंसर भी दिया हुआ है, अब वो आपको लिखना है कहाँ पे क्या आएगा। राइट, उसके बाद आपका एच पार्ट है, आंसर इन 1 सेंटेंस, ये आपको करना है। डिफाइन कॉर्पोरेट फाइनेंस आपको एक्सप्लेन कर दिया है। व्हाट इज फिक्स कैपिटल, ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। डिफाइन वर्किंग कैपिटल, ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। व्हाट इज़ प्रोडक्शन साइकिल, ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आज मैंने आपको जो कराया वो डिफाइन कैपिटल स्ट्रक्चर, ये भी आपको करना है। उसके बाद आई में आ गए हम, करेक्ट दी अंडरलाइन वर्ड एंड री राइट दी फॉलोइंग सेंटेंस। अभी देखते हैं, फाइनेंस इज नीडेड टू पे डिविडेंड टू डिवेंचर होल्डर, अंडरलाइन वर्ड को आपको करेक्ट करना है। क्या ये सही है? डिविडेंड लिखा है तो डिविडेंड की जगह क्या आएगा, मैंने आपको बताया था, एक ओन कैपिटल होता है, एक बोरोड कैपिटल होता है। ओन कैपिटल में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स है, बोरोड कैपिटल में हमारा डिवेंचर होल्डर है। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है,
डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है, वेरी गुड, यहाँ पे डिविडेंड की जगह क्या आएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। उसी तरह आपको ये सब कंप्लीट करना है, राइट। देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन देयर इज रिसेशन इन इकोनॉमी सेल्स विल इंक्रीजेस, ये आपको फाइंड आउट करना है। शेयर्स इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन रेज बाय द कंपनी, शेयर्स आएगा, एक्नॉलेजमेंट है, लोन ले रहा है, क्या आएगा इधर, डिवेंचर आएगा, ओके। इक्विटी शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट, इक्विटी शेयर्स कैरी डिविडेंड एट विच रेट, फ्लक्चुएट रेट, नॉट फिक्स रेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिक्स रेट किस में है, प्रेफरेंस शेयर्स में आएगा, आंसर आएगा प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स, ये भी आपको लिखना, फाइनेंसिंग डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ये आपको कराया मैंने, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही है, स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट में ही है। फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये तो आप लोग कर लोगे, राइट। यहाँ तक आपको लिखना है टिल क्वेश्चन नंबर 2, और जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बोला है वो लिखना है। कौन कौन से 4 क्वेश्चन मैंने बोला है, पहला बोला है व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, एक्सप्लेन इट इंपॉर्टेंस, राइट। दूसरा मैंने बोला कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, फिक्स कैपिटल का फैक्टर अफेक्टिंग है, वेयर एज वर्किंग कैपिटल का फैक्टर अफेक्टिंग है, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन इट कंपोनेंट, वो आपको लिखना है, राइट। और चौथा है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ये आपको लिखना है, बराबर। ये आपको असाइनमेंट नंबर 1 बना के आपको लिखना है। बाकी केस स्टडी मैं आपको बाद में बताऊंगा, बाद में समझाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, आई नो यू आर ए गुड स्टूडेंट, आई नो you all are a brilliant student, I know you are respected me, आप लोग रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, तो इसी रिस्पेक्ट से आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू।